Hello and welcome to this special broadcast on One India, where we, as earlier, bring to you new faces, new families, and new identities to the fore who are living abroad, away from their motherland, away from their families, possibly, and yet making and carving a niche for themselves in the different parts of the world. Today, we are joined by three new faces on this very show from United States, Dallas, if I may say so, specifically. Welcome to the show, Sangeeta ji, Deepak ji, and Brajesh ji. Thank you. Thank you. As we always have seen that when Sir Donald Trump has come into power back again, the dimensions, the dynamics, be it the citizenship birthright, be it immigration, or for that matter, a little bit changes here and there too in the American society on the whole is something that is creating headlines day in and day out. Let us delve deep and see how the Indian community sees these changes, also how they celebrate their togetherness there. And we would love to start from you, Sangeeta ji. Tell us about yourself, your role there, your job there, your family, and also how does it feel to still be rooted with India so far, far away from here? Yeah. So, as I said, that my name is Sangeeta Jha, and I'm currently residing in Dallas, Texas, with a very small family, small family with my loving husband and a son who is doing his undergraduate here in finance. So, yeah, I'm quite very happy here. Nothing to miss anything from India apart from your parents. That's the only thing. That's what I feel. That is the root that get connected to you to India. Apart from that, I see that you get everything. We are so Indianized. In fact, this is called as Dallaspuram, right? Okay. Yeah. So we have a whole lot of Dallas Indians here. Puram. We don't, yeah, we feel like we are in India here. And in this whole Indian culture, and we all belong to Maithil community, which is a very small community. And in this big crowd, we found our own family here, right? That's our Maithil family. And since I have joined this family, I think 2 years back, and it's growing day by day, and we are connected. We see each other. We enjoy all the festivals and everything. So I think that there's nothing to, we don't, definitely India is our root. The only thing is missing in my life is just the parents there, the relatives out there, Right. and we enjoy. Yeah, here, staying I'm here. sure they would be very glad and very proud to see you here on One India and sharing your experiences. And we wish that not just the family members, but also One India as the family Yeah. looks at all of you, celebrates your role, and also loves and learns from all of you. Deepak ji is also there. Deepak ji, thank you so much for taking time out. Generally, when we talk about Indians residing in United States, there's always a backstory to it. Some people have been there for 5 years, some maybe 10 or 15 or maybe 20 years. Those who went there for pursuing their higher studies end up living there. How does it feel specifically in terms of United States? How easy or difficult you would say it is to actually mingle in there? Well, first of all, thank you, Pankaj, for giving me an opportunity to speak to your audience. Mhm. I think we are part of what you can define as Y2K generation. Okay. That's when this second wave of a bigger immigration of Indians started. I think it started in late 90s, and maybe I am part of the first wave of that wave who came to this country. Uh, I think if the question you asked how we feel, or what is the general feeling, when I look back 20 years ago, this land felt like a foreign country. Today, as Sangeeta ji said, this feels like just an extension of our home country. Because, first of all, because the communication barriers have fallen, we can, like we are talking to you across, 10 different time zones, we can talk to our family members, we can talk to anybody in the world. So, in old days, we used to write letters, and maybe your parents or your family wouldn't have seen your face for Right. years. So that barrier, or the breaking of the barrier, has literally changed everything. Like, for example, we all are geared up to watch India's match tomorrow. So you get the TV, you get the connection with everybody. So the life here for us, I mean, is comfortable. Most of us are, from
a group which is well educated, well earning. So we have worked hard to create a decent place in this society. And I think because of that hard work, we are reaping the benefits. And you always miss your motherland. I've been living here for more than 25 years. That soft corner is always there. But as I said, because of the breaking of technology barriers, you feel like you are in India at times. Right, you can watch the movie the day it's released, and then you can watch cricket games. So I think we are all now become a small part of the global village. Right. So life was good. Obviously in any situation there are pros and cons, but I think overall, I think we are, as a community, we are doing good. Lovely, good, great to hear that. Brijesh ji, obviously, when we talk about technology, as Deepak ji mentioned, I think you are in the land of innovation. It all starts from there. I think only yesterday the news came that Skype would be taking its last breath, and Microsoft is now shifting on Teams. Now, obviously, these are the terms that we started knowing when we were in our formative years. You guys must have seen it, used it firsthand. Also, Skype for this generation is, I think it's prehistoric. So those changes that you see, that connect, as Deepak ji also mentioned, that now you don't feel that kind of disconnection, if I may say so, at least virtually to see each other. When it comes to an Indian living in a country like United States of America, culturally very different, how do you assimilate those changes? Is that how is Indian community known to be assimilating those changes? Do you add your own tadka there, or do you accept it on the whole? How does it work there? Thank you, Rajiv ji, and thank you for the opportunity to speak to your audience today. Like Pankaj, you just very rightly described, innovation has happened over the last 3 decades, and some of it Deepak ji touched upon and Sangeeta ji touched upon as well. I belong to the generation that was forced to write letters when I first came to US, and there were times when I had to describe what an Indian means, because as you understand, the notion of Indian Americans is something that we take for granted nowadays. But back in those mid-90s, it was not very common, particularly if you were in some, let's say, a rural place in traditional America. The beauty of this country is that as we have seen the pace of innovation, back from the days when, even before Skype, there was AOL. And we first began using AOL to make phone calls and to talk to family back in India. And then we saw the whole internet revolution followed by the mobile revolution and then the cloud revolution. And right now it's all about AI. Throughout all of this, what has been consistent is that communities like the Indian American communities, which are very focused on learning, something that is very unique about this diaspora is that most people who came from India, unlike some of the other immigrants, these people came primarily because they were searching for opportunities to do something beyond what was possible in India. At least in my case, there were no startups in early 90s. If I wanted to go and create a software product company, there were very few opportunities. And this was a case with many of us. Whereas in US at that time, you had all sorts of, the dot-com era had just begun. You had the phenomenal growth of startups. And a lot of them were fueled by the creative energy of people coming from all over the world. And Indians in particular played a very important role in that. And what has happened over the years, the assimilation of the Indian values, which are all about hard work, passion for learning, respect for excellence. These are core values that we came with when we came to US. And those values have served us well, and they have served corporate America really well, and the greater society really well, in the sense that nowadays, kind of respect that we get for our festivals, Diwali and Holi are celebrated en masse. You don't even have to describe what is Holi and what is Diwali.
There These are are things that are leaves also. There are holidays also. I hear in some absolutely parts. in our local school district, children Mhm, get those holidays, and it's mhm. celebrated in the White House. I mean, Right, it's phenomenal how far we have come. But right. at the core of it, there is always this very clear understanding that this is the land of opportunity where we Mm, have seen our capabilities take their true shape, mhm, mhm. and the values that we brought with us from our motherland. Those values have stayed with us and have enriched us. We have been able to give back to the society over here. And at the Mhm. same time, we have imbibed a lot of the goodness that America represents, the kind Right. of community service that people do over here, the Mhm. kind of respect for institutions that exists over here. A lot of those are the things that we have also picked in return. So it has been a phenomenal journey for most Indian Americans, and the DFW Mithila Society is no exception in that. PFW Mithila Society definitely coming and finding its root possibly in Bihar. The Mithila Samaj, often referred to the Raja Janak as referred to Sita's father and her clan, and then rest of them are the lineage that we see today. हाँ जी। संगीता जी, आप होम मेकर हैं, आपने काफी समय वहां गुजारा है यूनाइटेड स्टेट्स में, और जब अक्सर घर पर आपको बच्चों की देखभाल करनी होती है और बच्चों जैसा आपने कहा कि आपके सुपुत्र जो हैं वो अंडरग्रेड की पढ़ाई कर रहे हैं, तो जब एक नेक्स्ट जनरेशन वहां तैयार हो रही होती है इंडियंस की, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो एकदम ही आपको घर के माहौल में रखना पड़ता है कि बच्चे ये वाली बातों से विरक्त ना रह जाएं, उन्हें एटलीस्ट हिंदी की जो बात होती है, लैंग्वेज की जब बात आती है, तब होता है, साथ ही साथ उनको उस समाज से भी उतना ही अवगत कराना है जो आपके लिए शायद फॉरेन हो सकता है लेकिन उनके लिए इनेट होने वाला है, उनके लिए कॉमन होने वाला है। इस बैलेंस को कैसे स्ट्राइक करते हैं? जैसे आपने सही कहा कि हर फैमिली में अपना एक कल्चर होता है, राइट? हर फैमिली हैज देयर ओन कल्चर इन देयर अपब्रिंगिंग अपने बच्चों के तरफ, राइट? तो जैसे कि हम यहाँ पे आपने जैसे पहले पूछा था हमें कि आर वी कनेक्टेड टू इंडिया, राइट? तो हम जब हमसे आपस में हम बात करते हैं तो हमारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ अपने मिथिला समाज में आप ये देखिएगा कि बच्चे मैथिली में भी बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, पर वो मैथिली में भी बात करते हैं। और एमोंग जी। हमारे बच्चों के साथ में हम इंग्लिश हिंदी ये दोनों बात करते हैं। हम्म, और बट बच्चों के लिए क्या हो गया है ना कि अब उनके लिए वो डाइवर्सिटी होना भी बहुत जरूरी है यहाँ पे, हम्म, कि हम्म, इट्स नॉट दैट कि इंडियन कल्चर, क्योंकि वो हमारे रूट से सीखते ही हैं, बट दे नीड हम्म, टू हैव दोज फ्रेंड्स अराउंड, लाइक पीपल हु आर लिविंग और स्टडिंग इन स्कूल, लाइक अमेरिकन, मैक्सिकन, सो ऑन, क्योंकि उनको उन्हीं के साथ अपना करियर बनाना है, फ्यूचर जाना है, जॉब करना है। हम्म, सो हमारे बच्चे कैसे, व्हेन एज जयेश जी स्पोक अर्लियर, उन्होंने कहा कि वी ब्रिंग ऑल दिस हार्डशिप, वी आर वर्किंग हार्ड, दिस इज इम्बाइब्ड क्वालिटी इन अस, राइट? बट यहाँ के जैसे कैसे लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, हमारे बच्चे, दे आर वेरी गुड, हम्म, hard working, but sometimes staying in this diversity, they bring that leadership quality also in them. एब्सोल्युटली, तो ये एब्सोल्युटली। बहुत जरूरी है कि घर से ही शुरुआत होती है, कि अपना रीति रिवाज जो हम, इसीलिए ये शायद ये मिथिला समाज भी बना है जेरिन, वेरिन हम्म, हमारे बच्चों को हम सिखाएं, बिकॉज वो तो वहाँ ज्यादा अटेंड नहीं करते, वी नो कि हम क्या कर रहे होते हैं। तो ये हम्म, समाज में रह के हम उनको ये बताते हैं कि भैया आपका बाहरी दुनिया तो ये जरूर है, पर ये हम्म, हमारा भी कल्चर है। सो वो जी। एक्सपोजर बहुत जरूरी है, एंड दैट इज आई थिंक द पेरेंट्स हियर एवरीवन आर डूइंग अ ग्रेट जॉब by हम्म, forming this community, Indian as well as our Mithila community, wherein they are learning so many things from the school as well as our culture also. So they have a perfect mixture, I feel. राइट। So it's very nice, and we are proud of our kids here. They do well, yeah. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। And the parents are doing great doing that, yeah. आई थिंक मच ऑफ द क्रेडिट गोज टू द पेरेंट्स, डेफिनेटली। बिल्कुल सही कह रही हैं Yeah, आप संगीता जी, क्योंकि बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स की जब बात आती है तो मुझे लगता है yeah. उसमें किसी भी तरह से नो पेरेंट वुड वांट टू एक्चुअली डिप्राइव देयर किड्स ऑफ द एसेंस ऑफ बोथ द कल्चर्स। दीपक जी, 20 साल अमेरिका में गुजारने के बाद मुझे लगता है ऐसे कई तमाम हजारों टीवी सीरीज और फिल्में आई जिसमें कहीं ना कहीं एक कुमार
होता ही है उस अमेरिकन समाज में जो एक इंडियननेस को लाता है, चाहे वो सिम्पसन से बात करें या फिर बिग बैंग थियरी तक आते हैं, और फिर अभी के फिल्मों में अगर आप देखें तो इंडियन सोसाइटी ऑन दी होल, अगर उस पर अगर हम नजर डालते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ज्यादा अब एक्सेप्टेबिलिटी पहले से बढ़ी है अमेरिकी समाज में? अगेन अगर मैं अपनी जर्नी को देखूं तो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है, क्योंकि अब हम्म। हमारी संख्या भी बढ़ गई है। अच्छा। आप ये सोचिए कि अगर आप इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखिए, आप कहीं मान लीजिए दिल्ली में ही, नोएडा में ही देख लीजिए, आज से हम्म। 30-35 साल पहले बिहारी थे, इक्का दुक्का थे। बहुत कम, जब मैं बिल्कुल। बड़ा हो रहा था दिल्ली में हम्म। 90, छठ की बात कहीं नहीं होती थी। जी जी और जी। आज अगर आप छठ के समय दिल्ली में जाएं तो लगता है कि पूरा दिल्ली ही सेलिब्रेट कर रहा है, सब लोग यमुना में डुबकी लगाने को तैयार है। जी जी तो जी। नंबर अपने आप में एक जो है वो इम्पैक्ट पैदा करता है। और दूसरा, जैसे ब्रजेश जी और संगीता जी ने कहा, और जब वो संख्या एक मॉडल सिटीजन के तौर पे रहती है तो लोग देखते हैं और लोग उससे कुछ सीखने की भी कोशिश करते हैं। क्योंकि हम्म। लोग कहते हैं कि भाई जहाँ इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ स्कूल्स भी अच्छे हो जाते हैं, और जनरली हम लोग लॉ अबाइडिंग भी हैं, तो एक तरीके से कुछ हद तक मॉडल सिटीजन भी हैं, हम लोगों के बच्चे भी वेल बिहेव्ड हैं। तो उन सब एट्रीब्यूट्स के चलते और संख्या के भी चलते, हम्म। दोनों के मिश्रण की वजह से आपकी एक एक्सेप्टेबिलिटी जो है, और लोग आपको पॉजिटिव निगाहों से देखते हैं। बल्कि मैं तो ये हम्म। कहूंगा कि शायद एक कांग्रेसमैन थे, शायद जॉर्जिया के थे, तो उन्होंने तो इंडियन कम्युनिटी के गुणगान ही कर दिए कि मैं डॉक्टर के उसमें जाता हूं तो मुझे इंडियन नजर आते हैं, जब मैं किसी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बात करता हूं मुझे इंडियन नजर आते हैं। तो जनरली उस पॉजिटिविटी के कारण से लोग हम्म। हमारी हमारी वैल्यू को समझते हैं। और देखिए, किसी भी समाज में अच्छे बुरे लोग तो होते ही हैं। जी तो जी। कोई अगर कुछ कह दे तो उससे ये कह देना कि पूरा या एक बहुत बड़ा तबका अमेरिकन समाज का एक्सेप्ट नहीं करता। मैं तो कहूंगा कि मेरे साथ आज तक नहीं हुआ। ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ जो ये कहे मुझे कि यहाँ मेरी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। नहीं नहीं, तो बहुत बहुत पते की बात। तो हमारा जो है काफी अच्छा एक प्लेस है, हमारी एक्सेप्टेबिलिटी भी काफी अच्छी है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया दीपक जी, बहुत बहुत एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली दीपक जी। ब्रजेश जी इज आल्सो देयर विद अस। ब्रजेश जी, जो एक बात आई यहाँ पर इमिग्रेशन की यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसको लेकर काफी चर्चा हुई, इंडियन कम्युनिटी को लेकर बर्थ राइट इमिग्रेशन की चर्चा आई। हालांकि दोनों दो अलग चीजें हैं। हम एक एक करके आपसे जानना चाहेंगे कि दोनों इमिग्रेशन इशू कितना तूल वहां पकड़ रहा है, खासकर इंडियन कम्युनिटी में। इंडियन वर्क फोर्स में कई ऐसी कंपनियां हैं जो इंडियंस को भी एम्प्लॉय करती हैं, उनमें किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं। और दूसरा, बर्थ राइट सिटीजनशिप को लेकर जो एक कई डेकेड से, मैं कहूंगा, जो एक ट्रेंड चलता आ रहा था, कैसे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है इसको? तो इस विषय में मैं जो आपसे इस समय शेयर करूंगा वो मेरा अपना जो है ओपिनियन है, जो जी बिल्कुल। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है सोसाइटी में। हम्म। देखिए, जैसा हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि जिस जमाने में हम लोग आए यहाँ पर, और ओवर द इयर्स, मल्टीपल डेकेड्स में, अब तो मुझे सिटीजनशिप लिए हुए भी 25 साल के करीब हो चुका है। जी तो जी। हम लोगों ने जो है देखा है कि अलग अलग लेवल से लोग आए। शुरुआत में लोग आते थे हायर एजुकेशन के लिए, और हायर एजुकेशन के बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या फिर एकेडमिक्स में जाते थे। हम्म। और उनका फोकस हमेशा हमेशा इसी बात पे रहता था कि किस प्रकार की अपनी लर्निंग को वो कैसे डिप्लॉय करें, और फिर इन द कोर्स ऑफ दैट इमिग्रेशन एंड परमानेंट रेसिडेंटशिप एंड देन इवेंचुअल सिटीजनशिप, ये सारी चीजें जो है वो लॉजिकल होती जाती थी। जी हमारे केस में हमने कभी सोचा भी नहीं इस बारे में। हम्म। अब एक बार आप आ गए तो आपकी जड़ें मजबूत होती जाती हैं। बच्चे जो हैं वो लोकल सोसाइटी में एसिमिलेट हो जाते हैं, आप खुद सोसाइटी में एसिमिलेट होने लगते हैं। तो फिर एक पॉइंट आता है जब आपको लगता है कि वापस जाया जाए या यहीं रहा जाए। जी। और इवेंचुअली आप कहते हैं यार, अब इंडिया में और यूएस में अब उतना भी डिफरेंस नहीं रहा कि हम्म। इतना बड़ा ट्रांजिशन बच्चों को और परिवार को करवाया जाए। तो फिर इवेंचुअली यही होता है कि आप अपने आप को एक ग्लोबल सिटीजन के रूप में देखने लगते हैं। हम्म। और फिर आप फिजिकली यहाँ हो,
मेंटली आप वहाँ हो, कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं, कभी काम की वजह से, कभी पर्सनल वजह से। तो इवेंचुअली क्या हुआ है कि ये जो दायरा था, जो आज से 30 साल पहले इंडिया और अमेरिका में बहुत बड़ा फर्क लगता था, वो अब काफी हद तक मिट चुका है, बोथ कल्चरली एंड डिस्टेंस वाइज एंड इन मेनी अदर वेज। Right. अब रही बात जो आप कह रहे थे, ये इमिग्रेशन चेंजेस और जो अपकमिंग चेंजेस की बातें हो रही हैं, तो अगर आप देखेंगे तो लोग अलग अलग टाइम पर जो आए हैं, हर किसी का अपना एक पर्सनल प्रायोरिटी होता है। लोग अपने लाइफ के विषय में अपने हिसाब से सोचते हैं। अब जो लोग बहुत पहले सिटीजन बन चुके, उनके लिए तो ये चेंजेस जो हैं, इनसे कोई खास उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। जो लोग अभी इस प्रोसेस में हैं, जो कि बहुत अच्छे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, लेकिन उनकी परमानेंट रेजिडेंटशिप हो नहीं पा रही है क्योंकि लीगल इमिग्रेशन इतना बैकलॉग में पड़ा हुआ है, उनके लिए वो एक्साइटेड हैं कि शायद लीगल इमिग्रेशन के रिफॉर्म्स होंगे और उनका जो ये बैकलॉग है वो सॉर्ट आउट होगा और वो फिर प्रॉपरली यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट्स की तरह रह पाएंगे। और तो थर्ड वेव है वो जो लोग कि अभी रिसेंटली आए हैं, पिछले कुछ सालों में आए हैं, और उनको अचानक से ये सारी चीजें जो हैं देखनी पड़ रही हैं, तो उनका रिएक्शन बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो लाइफ के उस स्टेज में है जब उनकी फैमिली अभी जस्ट बनने वाली है, बच्चे हैं, बच्चे आने वाले हैं। उनके दिमाग में अलग टाइप का वो जो कहते हैं कि किंग कर्तव्य विमूढ़ होने वाली बात हो जाती है उनके लिए, कि भाई बच्चों को यहाँ रेज किया जाए, यहाँ तो इमिग्रेशन का कुछ पता नहीं चल रहा है, मे भी शायद हमें वापस लौटना चाहिए। तो हर जनरेशन जो है वो अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रहा है, लेकिन एक कॉमन थीम जरूर है, और वो ये कि इंडियंस आर बिग बिलीवर्स इन लॉ एंड इन लीगल इमिग्रेशन। और जितना लीगल इमिग्रेशन को रिफॉर्म किया जाएगा, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी हमेशा उसके साथ होगी, और वो हर जनरेशन के मामले में कॉमन रहा है। बहुत पते की बात मैं कहूंगा, और वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कमिंग फ्रॉम डैलस Indian American families, that how they see themselves as part of the community, and also they are with the changes that are being brought in the US setup there. ब्रजेश जी हमारे साथ बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी, एक शब्द ब्रजेश जी ने इस्तेमाल किया, मैं उस पर उठाना चाहूंगा उस शब्द को, किम कर्तव्य विमूढ़, क्या करें क्या ना करें, इनडिसीजन की स्थिति। ये शब्द आपको लगता है कि इस जनरेशन के बच्चे जानते होंगे अमेरिका में? नहीं, एकदम भी नहीं जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो किंग क्या करें क्या ना करें, ये जो कश्मकश होती है, वो मेरे ख्याल से हम हमारे जनरेशन तक रही है ज्यादा। क्या करें नहीं करें, इंडिया जाए। आजकल के हम अपने बच्चों को जो देखते हैं, और मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं अराउंड, बीइंग मिथिला, नॉन मिथिला, एनीवन, उनके बच्चे आर प्रीटी क्लियर कि उनको भविष्य में क्या चाहिए। They are pretty clear in their decision. So वो किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली जो चीज जो ब्रिजेश जी ने कही, मुझे लगता है कि वो हमारे जनरेशन तक खत्म हो जाएगा। हम अभी भी उस स्टेज में डिलेमा में हैं कि सिटीजनशिप मिल गया और यहाँ सेटल हुए, लेकिन बुढ़ापा काटने में इंडिया ही जाने वाली हूँ, वहीं आराम से रहूंगी मैं, वो सुख सुविधा मिलेगा, यहाँ बच्चे सेटल हो गए हैं। तो वी आर स्टिल इन द डिलेमा, हम जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों के मोह माया बहुत बड़ी चीज होती है, तो बच्चों से दूर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन स्टिल वो डिसीजन अभी भी हम यहाँ रहने के इतने सालों के बाद ये सोचते हैं क्या ठीक कर रहे हैं, रिटायर हो गए हम वहां जाएंगे, बच्चे सेटल हो गए, लेकिन हमारे बच्चे आप प्रीटी क्लियर कि हम यहाँ हैं। सो किंग कर्तव्य विमूढ़ जो शब्द है, सॉरी प्रोनाउंस शायद गलत हुआ होगा, इट्स नॉट विद देम, इट्स विद अस ओनली, आई थिंक। या such a beautiful way to put it into context here, Sangeeta ji and Deepak ji. I can't stop marvel from the fact that कि इसकी जननी कहाँ से है। क्या ये अमेरिकी समाज का वो स्थिरता, वो सामंजस्य है भारतीयों के साथ, एंड वाइस वर्सा, या फिर ये भारतीय इंडियन अमेरिकन की एक मेटल शो करता है उनके पेरेंटहुड का, कि बच्चों को वो सारी सुविधाएं और वो ऑप्शंस भी देते हुए जो एक इनडिसीजन का जो दौर होता है, जो बहुत सही कहा संगीता जी ने, शायद हमारी जनरेशन में आके खत्म हो जाए, मुझे लगता है
It couldn't have been put in a better context than this. Deepak ji, talking about once again the changes that are coming in the American society, how does it feel? I mean, to be a part of a society often referred to as the uh, most powerful nation on the world. We saw Zelensky at Donald Trump's doorstep. That was something that Donald Trump handled him, presidential or not, remains to be seen. But yes, he took a stand. कैसा लगता है वहां के थोड़े से जो राजनीतिक परिदृश्य हैं वो भी अलग होते हैं, थोड़े चुनाव भी अलग होते हैं, फॉल आउट भी उनका अलग होता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट से कभी मैच करके देखते हैं उसको? आई थिंक अब अमेरिका की राजनीति शायद इंडिया की राजनीति से कुछ सीख रही है कि देखिए, कोई भी समाज जो है एक पेंडुलम की तरह स्विंग होता है, कभी वो थोड़ा लेफ्ट ज्यादा स्विंग हो जाता है, कभी थोड़ा राइट स्विंग हो जाता है। तो आई थिंक अभी शायद काफी साल से लेफ्ट स्विंग थोड़ा ज्यादा था, उसको बैलेंस करने के चक्कर में मे बी हम थोड़ा और राइट हो गए हैं। तो ये एक समय के साथ जो है, क्योंकि कहते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो लोग जब लेफ्ट हो जाते हैं तो राइट आने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो है हम डेफिनेटली राइट में हैं, और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच में हुआ वो डेफिनेटली एक अनप्रेसिडेंटेड था। मगर मुझे लगता है कहीं एक प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, जो लास्ट 20-25 साल से मे बी यहाँ की सोसाइटी थोड़ा लेफ्ट वर्ड प्रेशर फील कर रही थी, उसको रिलीव करने का एक जरिया है। अच्छा। और उसी मुद्दे को लेके वो चुने गए। उन्होंने इमिग्रेशन की बात की, उन्होंने एक मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उनकी शायद सोचने के नजरिए में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में हर एक चीज को असर्टिव तरीके से रखने की बात जो है, उनका एक नजरिया है। तो ये शायद उसी का एक रिजल्ट है। और रही बात अगर उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे लेते हैं, तो ओवर टाइम अगर आप देखें तो इंडियंस पहले मोस्टली डेमोक्रेटिक होते थे, अब वो भी रिपब्लिकन हो रहे हैं। अब इनफैक्ट देखिए, आई मीन एक मिक्स है। जी जी क्योंकि जी जी, हाँ। क्योंकि जैसे मैंने कहा, हमारे समाज में काफी लोग थोड़ा हाई अर्नर्स हैं, वेल एजुकेटेड हैं, और हम लोग उस एनवायरमेंट से आए हैं जहां हम बोलते हैं ठीक है, हमें आप प्लेटफॉर्म दीजिए, हम मेहनत करेंगे, हमें और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें एक इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो वे कुछ उस आइडिया से लोग कुछ रिपब्लिकन साइड में मूव हो गए हैं। अब देखिए, अब यहाँ का जो FBI का हेड है वो भी एक इंडियन अमेरिकन ही बनाया गया है। तो इंडियंस मुझे लगता है दोनों तरफ हैं जी। कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज में बिलीव करते हैं, कुछ रिपब्लिकन वैल्यूज खासकर से इकोनॉमिक साइड में बिलीव करते हैं। और आई थिंक हम लोग अगेन, मैं उन इंडियंस की बात कर रहा हूं जो यहाँ थोड़े ज्यादा समय से हैं। वो लोग न्यूट्रल माने उनका अपना एक बैकग्राउंड है, कुछ डेमोक्रेटिक हो सकते हैं, कुछ जो है रिपब्लिकन हो सकते हैं। जो नए जो पिछले 5-10 साल में आए, उनके लिए इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उसमें ट्रम्प को लेके थोड़ी दुविधा ज्यादा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो कुछ एक अनसर्टेनिटी, एक क्लैरिटी नहीं दी है। मे बी हम इंडियंस जो है उस क्लैरिटी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ब्रजेश जी ने कहा, हम लीगल इमिग्रेशन के पक्षधर हैं, हमें बता दीजिए कैसे करना है, काम हम वो कर लेंगे, हमें कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं चाहिए, हमें बस एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म दीजिए। तो एक वो अनसर्टेनिटी डेफिनेटली है, और वो इंडियन अमेरिकन के लिए नहीं, पूरे अमेरिकन के लिए, कि थोड़ा बहुत जल्दी डिसीजंस आ रहे हैं, बहुत जल्दी पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं। तो हम बाकी अलग समुदायों की तरह हम भी इम्पैक्टेड हैं, और हम भी देख रहे हैं कि देखते हैं आगे क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ समय पहले ब्रजेश जी, दीपक जी, संगीता जी, मेरी बात अटलांटा के एक इमिग्रेशन अटॉर्नी से हो रही थी, लॉ अटॉर्नी से, और भव्या चौधरी झा उनका नाम है। और उन्होंने जिक्र किया था कि इट वेरीज इन इंटेंसिटी ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि सब पर कॉमन ब्रश ऑफ स्ट्रोक से काम होता है। बट जहां तक सवाल इंडियन कम्युनिटी का है, ब्रिजेश जी, मुझे लगता है जैसा आप लोगों ने बात रखी अपनी, और दैट्स व्हाई दिस कॉन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट टू नो अबाउट हाउ द फेस्टिवल्स आर बीइंग सेलिब्रेटेड, बट ऑल्सो how do you see these changes? How are you making some required changes here and there in order to stay on the right side of the things there? ब्रिजेश जी, एक बात जो उठकर आई, जो मैंने भव्या जी से भी पूछा था, वो है डोनाल्ड ट्रंप के गोल्ड कार्ड का कॉन्सेप्ट, गोल्ड कार्ड वीजा, गोल्ड वीजा का कॉन्सेप्ट। हालांकि
कई इंडियंस ऐसा माना जाता है कि उसकी उनके रीच में थे जब वो EB5 के फॉर्म में था। जो एक अमाउंट जो मेंशन किया गया है, 800,000 US डॉलर से लेकर मुझे लगता है $1.05 मिलियन तक वो है संख्या उसकी। आपको क्या लगता है जो एक रिच अमेरिकन है, दीपक जी ने भी बात जब की कि किस तरह से एक टिल्ट हो रहा है रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में, वो बहुत हद तक देखें तो जो डोनेशंस इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी से जाती थी उसमें भी टिल्ट नजर आ रहा है उन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ। आपको क्या लगता है जो वहां पर रिच इंडियन कम्युनिटी है अगर, तो वो पक्षधर है गोल्ड कार्ड वीजा की, या इससे पहले जो EB5 और EB2 और 3 जो वर्जन थे उसके, उससे ज्यादा उनको फायदा हो रहा था? कभी ऐसी कोई बातचीत आई सामने? स्पेसिफिकली इस विषय में तो बात नहीं हुई है, लेकिन हम्म, इतना अवश्य है कि एक बहुत बड़ा तबका जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी का है वो टेक इंडस्ट्री में है, और टेक इंडस्ट्री में लेबर शॉर्टेज का बड़ा प्रॉब्लम रहा है, और लेबर शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड लेबर। और दैट इज वन रीजन कि बहुत सारे इंडियन अमेरिकन जो यहाँ आए हैं दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड, और जो उनकी स्किल है वो टेक कंपनीज को जरूरत है, और जो ऑफिशियल मैकेनिज्म, लीगल मैकेनिज्म था उसको फॉलो करके वो लोग यहाँ पर उस जॉब में आए हुए हैं। अब रही बात ये गोल्ड कार्ड की, तो दिस इज मोर ऑफ, this has less to do with filling a labor skills shortage. more of This is earning more money. about attracting well-to-do, wealthier kind of immigrants. और ये एक political decision है, इस पर हम लोग क्या कहेंगे, ये तो जो भी है well thought out ही होगा। लेकिन इतना अवश्य है कि जो Indian American community है, they are always about enriching the society, enriching with their knowledge, with their commitment, with their hard work. And in that sense, any legal reform that improves the state of the society and fuels innovation, they will always support it. And if ये जो gold card है, if it is one mechanism to bring in potential entrepreneurs who bring in fresh funds and trigger new jobs to be created in American society, तो उसके support में जरूर होंगे लोग, because that again will be in line with the traditional philosophy that Indians have stood for. Absolutely, absolutely. ब्रजेश जी, दीपक जी, संगीता जी, ये चर्चा जो है मुझे लगता है जारी रहनी चाहिए अलग अलग पोर्टल्स पर भी, अलग अलग स्तर पर, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है कि इस तरह के जो बड़े चेंजेस अगर होते हैं तो किस तरह से उसका इम्पैक्ट होता है और कैसे उसको हम लोग अच्छे ढंग से उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। संगीता जी, हमने जाना कि दीपक जी लगभग पिछले 2 दशक से, ब्रिजेश जी हैज बीन देयर फॉर मोर देन 2.5 decades इन यूनाइटेड स्टेट्स। आप होम मेकर हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। एक तो खैर स्पाउजल वर्क कॉन्सेप्ट भी एक H1B के साथ और अन्य किस्मों के वीजा के साथ हम लोग जरूर देखते हैं, लेकिन चलिए वीजा की बात हम लोग बाद में करेंगे। आप पहले हमें ये बताइए कि टू रेज किड्स देयर and to have your own small little world there, jab maybe if the other members are at work or maybe busy working from home in one part of the house, कैसा रहता है दिन? हाउ डज योर डे गो अबाउट इट? और जो आपके मित्र हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं आसपास, किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अभी everyone has to go to office। यहाँ मेरे हस्बैंड भी थे, वो भी ऑफिस जाते थे, बट सिंस द कोविड हैड सेट इन, वो बोलते हैं ना जैसे कि शेर को खून का स्वाद लग जाना, वैसे ये रिमोट वर्किंग जो हो गया है, सो पीपल स्टार्टेड दे एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग टू बी रिमोट एक्सेप्ट फॉर एन IT। बाकी सारे फील्ड लोग दे आर ऑन द फील्ड, ऑन साइट, राइट। और IT में जो लोग हैं वो स्टिल रिमोट चाहते हैं फॉर देयर कन्वीनियंस एवरीथिंग। बट आप मुझे पूछ रहे हैं एज एन होम मेकर, मेरा टास्क कैसे बढ़ा, मेरा काम कैसे बढ़ा, and because my husband is all the way, and then again it's a personal thing है, is from family to family, right? How cooperative your husband or you to each other as a spouse, और आपकी कितना स्पेस दे रहे हैं एक दूसरे के लिए। we so I don't think so कि that has really changed me. I'm having my own freedom, my space, and मेरे जो फ्रेंड सर्कल्स हैं उनके, मेरा अपना टाइम है। इनफैक्ट
It's not that I'm a homemaker. I'm a homemaker as well as I'm a home coordinator, because I give that office space to my husband, Yes. and that is the reason he's doing so well, Yes, yes, yes. giving his 100% to his office, right? So I have built a nice office for him in the home. Uske alawa, yeah. So uske alawa, I give him mental peace also. So खाना पे तो उसके कारण वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. So the home is now become more than as an office, right? लेकिन मुझे कुछ चीज करने से स्टॉप नहीं करता है. मैं वो ही करती हूँ जो मुझे पहले करती थी जब वो ऑफिस में थे. घर में है अभी भी वही करती हूँ. But this is all like personal spouse to spouse. और आजकल तो वो फ्रीडम सब चाहते हैं कि you are you, your spouse is spouse, your बच्चे is बच्चे, right? तो आप वो ही करोगे जो आप करोगे. We are staying here in United States, so everyone wants to have their freedom, and I make it a point that I have my freedom. Husband को भी देती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ, and I believe in that, and we have that harmony among ourselves, right? So it doesn't make any difference. Yeah. I would say ये पैनल जरूर 3:1 मेल वर्सेस फीमेल दिख रहा हो आपको, लेकिन सबसे मैं आपको बताऊंगा पलड़ा सबसे ज्यादा भारी आप ही का है, क्योंकि जो रोल आप लोग प्ले करती हैं एंड अक्रॉस द ग्लोब आई वुड से. मेरे से एक सवाल पूछा गया था कि अगर आप अपने ऑफिस में किसी लिंक्डइन के लिए इंटरव्यू में किसे आप हायर करना चाहें, किसी को भी, जिसको भी आप हायर कर सकते हैं अपने समाज से, अपने परिवार से, दोस्तों से, कहीं से भी अक्रॉस द वर्ल्ड, तो मैंने अपने मदर का ही नाम लिया था, क्योंकि जिस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं और बिल्कुल होम कोऑर्डिनेटर वाली जो बात है उसको तो भाई नमन है. जैसे जैसे समय बीतता जाता है दीपक जी, बच्चे बड़े होते जाते हैं, फैमिली एक्सटेंशन होती है, समाज वहां बनता चला जाता है. फॉर दिस cohesive society to exist, obviously there must be intermingling also across the 50 states of United States, across the different cultures. जब बच्चों की शादी की बात आती है तो क्या तब आप लोग वहीं मिंगलिंग है, वहीं का समाज इस तरह से है आप लोगों में कि शादी के लिए लड़का या लड़की अगर ढूंढना हो तो वहीं मिले? मुझे लगता है कि वो चीज हर एक जगह बदल रही है. अच्छा. मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करूंगा, क्या आपको लगता है आज इंडिया में भी जो बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, जो से 2000 के आसपास जो 25-30 साल के बच्चे हैं, क्या वो वैसे ही शादी करते हैं जैसे शायद आपने की या मैंने की या जो हमसे पिछले जनरेशन में? तो ये चेंज, ये जनरेशनल चेंज तो हर जगह आ रहा है. अच्छा, ठीक. और दूसरा, यहाँ की जो अपब्रिंगिंग है वो ऐसी है कि हम बच्चों को अपना डिसीजन सही गलत खुद लेने की हम सोचते हैं कि हम उनको ट्रेन कर रहे हैं, यस, हम उनको हर एक चीज से एक्सपोजर देते हैं, हम उनको अपना कल्चर बताते हैं, मगर शादी एक ऐसा डिसीजन है कि बच्चे या कोई भी इंसान वो अपनी मर्जी से लेना चाहता है. अगर उसको ऐसा कुछ मैच मिलता है तो वो करेगा. क्या अगर आप पूछ रहे हैं एज अ पेरेंट क्या मैं फोर्स करूंगा? नेवर. क्योंकि देखिए, हम जिस परिवेश में पैदा हुए, वो जिस परिवेश में पैदा हुए, वो डिफरेंट है, और हमें उनकी थिंकिंग के हिसाब से उनको वो फ्रीडम हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप कुछ डिसीजन उन पे थोप दें और कल को कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो आपको ही ब्लेम करते रहे. और ये ऐसी चीज है कि हमें इस चीज को एग्री करना पड़ेगा कि हर एक माहौल एक डिफरेंट होता है, वो आपकी डिफरेंट तरीके की थिंकिंग को जन्म देता है. मेरे लिए हो सकता है सुबह उठ के श्लोक पढ़ना जरूरी नहीं है मेरे बच्चे के लिए. वो शायद दिन में 2 बार हाथ ही जोड़ के अपना काम चला ले, या उसकी कोई अलग थिंकिंग हो. एज अ पेरेंट हमारा काम है उनको एक्सपोजर देना और हर एक चीज के बारे में एक आइडिया देना. आजकल के जनरेशन और हमारे जनरेशन में शायद ये फर्क है कि पहले आप पूजा में जाते थे, कुछ पंडित जी ने मंत्र पढ़ दिया, हम लोगों ने भी वही मंत्र पढ़ दिया बिना कुछ मतलब समझे. आज के बच्चे लोग मंत्र पढ़ने को शायद तैयार भी होंगे, वो लॉजिकल जानना चाहते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं. तो सेम चीज शादी पे भी लागू होती है. ठीक है, आप उनको चॉइस दीजिए, वो लोग अपनी कंपैटिबिलिटी देखते हैं, जो शायद आजकल इंडिया के बच्चे भी देखते हैं, क्योंकि जहां आप जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल के हिसाब से आप ऐसा जीवन साथी चाहते हैं कि जो आपके विचारधारा से जुड़े. क्योंकि पहले शादियां परिवारों की होती थी, लोगों की कम होती थी. आजकल इंडिविजुअल उसका जमाना है, वो लोग अपना मैच देखते हैं. अगर उसमें अगर आपको आपकी कम्युनिटी या इंडियन से अगर मैच हो जाए तो बहुत बढ़िया. अगर नहीं भी है, एट द एंड उनकी लाइफ है, ये है कि उनको जो पसंद आता है, हमारे इनपुट अगर लेते हैं, हम अपना इनपुट देंगे. तो आई थिंक वो जमाना हर जगह चेंज हो गया कि जहां किसी ने बोल दिया
ये मैंने अपनी जबान दे दी है, अब तू उससे शादी कर ले, वो जमाना तो हर जगह चला गया। तो यहाँ भी वही। बिल्कुल, नहीं नहीं, बिल्कुल, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोसाइटी एंड अपब्रिंगिंग आल्सो। बिल्कुल सही कहा दीपक जी आपने। और ये सवाल पूछने का मेरा दो मेन औचित्य था। पहला तो ये था कि बहुत कौतूहल रहता है, अगर आप देखें भारतीय समाज को, टू आवर इंडियन व्यूअर्स हु आर वाचिंग इट फ्रॉम इंडिया एंड टू दोज हु आर वाचिंग इट फ्रॉम बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, it is definitely a matter of anxiety, curiosity that how does how do things work out there, because many of them are aspiring to go, many of them want to see that part of the world, long term, short term, whatever it is. Many of them are on the fence sitters whether to take a decision or not, कि रहें नहीं रहें, क्या करें, जैसा कि आपने ब्रजेश जी ने बताया भी था। एक फाइनल सवाल ब्रजेश जी आपसे मैं लेता हूँ यहाँ पर। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब दो सोसाइटीज अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर कहीं भी मर्ज करती हैं, तो as a member of the Indian community, and United States has community members from all parts of the world, you name it and they have it, उस इमिग्रेंट कम्युनिटी में, उस नॉन अमेरिकन कम्युनिटी में अभी जो इंडियन कम्युनिटी की पहचान है, बिल्कुल अपने कई पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स की वजह से रही है। अदर देन दैट, अगर मैं आपसे जनरली जानना चाहूँ आपके पर्सनल व्यू को, जब आप शाम में दोस्तों से मिलते होंगे, तब इंडियन कम्युनिटी की क्या डिमांड रहती है, या भी रिसेंटली क्या आपको ऐसा लगता है जो कि इंडियन कम्युनिटी डैलस में या अक्रॉस द स्टेट अपनी बात रखना चाहेगी सरकार के सामने कि कुछ ऐसा भी होना चाहिए? मेरे ख्याल में जो बात हम पहले भी कर रहे थे, इंडियन कम्युनिटी के सामने सबसे बड़ा हैसल, अगर हम शाम के समय दोस्तों से मिलें तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बेचारे फंसे हुए हैं इस समय लीगल इमिग्रेशन के बैकलॉग की वजह से। तो जितना रिफॉर्म लीगल इमिग्रेशन का होगा और जितनी सुविधा यहाँ आकर के जिन लोगों ने बड़ी मेहनत से मास्टर्स किया हुआ है और उनका फ्यूचर बड़ा अनसर्टन हो जाता है अगर उनको कॉर्पोरेट जॉब ना मिले तो वैसे लोग जो हैं उनका प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाए, जिससे कि कोई पाथवे हो जो हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं और वो सेम कैटेगरी में फंस जाते हैं जस्ट बिकॉज दे हैपन टू बी बोर्न इन इंडिया, तो वो जो है ना सिस्टम, उसमें अगर रिफॉर्म होता है तो वो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ दैट, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट हर्ट्स द कम्युनिटी टुडे एंड इट इज पेनफुल। मुझे इन एनी गिवन वीक मेरे पास कम से कम 7 से 10 दोस्तों के व्हाट्सएप आते हैं कि यार मेरे बेटे ने मास्टर्स कर लिया है, जरा उसके लिए इंटर्नशिप देख लो, या उसका वीजा जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, उसको एक परमानेंट जॉब दिला दो। और एंड वी फील हैंडीकैप्ड कि भाई कितनों का कर पाएंगे। तो ये जो है ना, दिस इज बिकॉज ओवर द इयर्स लीगल इमिग्रेशन रिफॉर्म हैज नॉट हैपेंड टू द एक्सटेंट दैट इट शुड हैव, और अभी जो सिग्नल्स हैं दोज आर वेरी पॉजिटिव सिग्नल्स। सो इसलिए हम लोग सब लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं इस बात को लेकर के कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा एज सून एज सम ऑफ द अदर थिंग्स आर आल्सो बीइंग एड्रेस्ड इन लीगल इमिग्रेशन एंड ऑल ऑफ दैट। चलिए ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी, थैंक यू सो मच, एंड दीपक जी, can't thank all of you enough for taking time out this Saturday evening and speaking to One India.